Yes, sir. Yes. Good afternoon, everyone. How are you all? Sir, good afternoon. I'm fine, ma'am. What about you? What about you? I'm fine, I'm and also what fine. about you? I'm also fine. In this session, we are going to study English subject. Today, we are going to start a new concept. We will be learning. We will be learning about the grammar. We will be learning about the concept that is belong to the grammar. In our last session, we studied about the phonetics, how to pronounce letter E and AE. है ना? Last session में क्या पढ़ा था? What did you learn in your last class? Who can tell? The sounds of letter E and letter EA. There were two sounds. कहीं पे आपका A sound आता था, कहीं पे E sound आता था. Today we are going to start the new section, and the new section in your book is that is a grammar junction. Let me open the page. Let me open the book. Okay, now I hope you all are getting the book as of now. How many have seen the book? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. sir. Muskan is writing something. Muskan is drawing many things. Muskan, why you are doing these things? What do you think? Muskan Prajapati, आप छोटी बच्ची नहीं है जो ये सारी चीजें कर रही हैं. Muskan was drawing all those things. I'm here. From here, I can check that who is drawing all those things. Who is using the annotator options. You don't have to do anything. ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चलेगा. By the way, just I'm disable annotate for the others. Okay. Okay, come to the concept that is a grammar junction. Concept that is a helping verb and main verb. We have to differentiate. We will be getting the difference that what is difference between main verb and helping verb. I hope everybody have learned about the verb. Did you learn about verb or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everybody are aware with the verb? Yes, sir. Yes, sir. Can anybody tell me that Yes, what is sir. verb? What is verb? Who can tell? Show me your hand. First of all, we should be knowing about the verb now. Thereafter, we will be talking about the main verb and helping verb, because these are the two parts. As per their usage, there is a two kinds of verb. One is the main verb and the second one is the helping verb. So before moving ahead on the main verb and helping verb, before telling about the main verb and helping verb, first of all, we should be knowing about the verb. Yes, Anushka Yadav, tell us about the verb. All doing and saying is called verb. All doing All doing and saying is called verb. All doing and saying is called verbs. Tell me the example. Sir, ride, wash. All the actions. Okay. Astha Maurya, you tell us, beta. What do you understand by verb? All action words are called verb. All the action verb is called verb. बेटा आप एक verb को action words के नाम से भी जाना जाता है. शिवांगी का नाम घर का शिवांगी है या कुछ और भी है? Actually, I'm not getting. लेकिन कई लोगों के दो नाम होते हैं. Let's say कि अभिनय का ही लेते हैं. अभिनय का नाम स्कूल में अभिनय है, घर पे तन्मय है, तो सभी तन्मय अभिनय कहलाते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते ना. Who can tell about the verb? Shikhar Verma. Shikhar Verma, unmute yourself and tell us about the verb. All saying and doing is called verb. Okay, anybody else who want to tell about the verb? Rajpal,
आपके पापा की बड़ी शिकायत है कि आप नहीं बोलते हैं कुछ। Yes, sir. आप बताइए वर्ब क्या है, पता है कि नहीं? I'll ममता बेटा, Yes, sir. All saying and all एक doing बच्चे work ने बोल are दिया called ऑल verbs. सेइंग एंड ये वर्ड्स इज अ वर्ब। आप वही सुन करके सब लोग बोलेंगे। इसके अलावा और कुछ बोलने वाला कोई है इस सेंटेंस के अलावा? अभी जो अनुष्का यादव ने बताया उसके अलावा कुछ और कोई बता सकता है वर्ब के बारे में? दे कैन रेज द हैंड। ऐसा नहीं है वही चीजें बार बार लोग बोले। दीपक सिंह बताइए, कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड वर्ब है? चलिए ठीक है, कोई नहीं बता पा रहा। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। आपको कभी भी वर्ब पहचानने में कभी नहीं गलती होगी। A verb is a word shows an action. A word is a, देखिए ध्यान से सुनिए, a verb is a word. वर्ब जो है एक वर्ड है। आपने जैसे बोला राइटिंग इट, तरीके से ये सब वर्ड है ना, वो यही वर्ब कहलाते हैं। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कौन से वर्ब कहलाए? A verb is a word। सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैं अभी पूछूंगा जरूर, सबसे सुनूंगा मैं। A verb is a word which shows मतलब दिखाता है। A verb is a word which shows an action or a state. An action मतलब कोई कार्य या अवस्था। स्टेट मतलब होता है अवस्था, सिचुएशन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। आप जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें वो सब्जेक्ट जो करता होता है वो कौन सा कार्य कर रहा है या कौन सी अवस्था में है, कौन से स्टेट में है, दैट इज, जिस वर्ड से हमें पता चले दैट इज कॉल्ड अ वर्ब। सारे एक्शन यानी काम जो हो रहा है जिससे हमें ये पता चलता हो which work is going on, कौन सा कार्य हो रहा है, that is known as a verb. Many of the students have put their videos on off mode. ममता, संजना, बिमलेश, आप सभी को मैं बाहर करूंगा अगर वीडियो आपका ऑन नहीं हुआ। I don't want any students having video off. वीडियो बंद करके आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या चले गए हैं बाहर, कैसे पता चलेगा? जो वीडियो बंद करते हैं आप ऐसा क्या छिपाना चाह रहे हैं? दैट मींस कि यू आर डूइंग फन, यू आर नॉट स्टडिंग। तो एक बार फिर से आप लोग समझिए, एनी ऑफ द वर्ड, कोई ऐसा वर्ड, ऑल द वर्ड, जो भी वर्ड होते हैं जो वर्ड से हमें किसी कार्य के होने का या किसी आपके सब्जेक्ट के अवस्था के बारे में पता चले कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में, मतलब कब की बातें कर रहा है, उस सिचुएशन की बातें, दैट वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। ओके? Yes, sir. Sir. Yes, sir. एग्जाम्पल लें, मान लीजिए एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल यहीं पे ले रहे हैं। लेट्स से एक एग्जाम्पल मैं लिख ही दे रहा हूँ आप लोग के लिए, छोटा सा एग्जाम्पल मैं लिख ही दे रहा हूँ। Virat is playing cricket. I'm writing one more sentence. Virat is a here I have written couple of the sentence. The first one is the, read the first sentence. Abhinay Pandey, माइक ऑन करके बेटा। Virat is playing cricket. ओके, अंचित
Read the second line. Aman Paswan. Gaurav Paswan, sorry. Gaurav Paswan. Read the second line. कोई भी पढ़िए बेटा. Virat is a cricketer. Virat is a Virat is cricketer. a cricketer. ओके नाउ आप सभी लोग ध्यान से सुनिए. अब यही दो चीजें हैं. वर्ब मैंने कहा कि जिस भी वर्ड से कौन सा कार्य हो रहा है इस चीज का पता चले, दैट इज अ वर्ब. जिस भी वर्ड से क्या कार्य हो रहा है ये, या किस अवस्था में है. सब्जेक्ट यानी जो आपका जिसके बारे में बात किया जा रहा हो. अभी विराट के बारे में बात हो रही है ना. Yes, sir. So Yes, sir. what is the task is going to be done in this? विराट क्या कर रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है यहाँ पे? प्लेइंग Sir, playing. हो रहा है ना. Yes, sir. Yes, sir. That is a verb. And now आपको यहाँ पे there is one more thing. यहाँ पे लिखा is. विराट क्रिकेटर, विराट इज प्लेइंग क्रिकेट. यानी जो खेल हो रहा है, प्ले हो रहा है, या हो रहा है या हो गया या होगा. अवस्था का, इसका स्टेट ऑफ सर हो रहा है. हो रहा है. ये हो रहा है. वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर. कौन से अवस्था में, कौन से सिचुएशन में? सर प्रेजेंट. किस वर्ड से मुझे पता चल रहा है? किस वर्ड से आप लोग को पता चल पा रहा है? क्रिकेट देख करके आप ये प्रेजेंट टेंस कह रहे हैं? कौन सा वर्ड से? ध्यान से सुनिए आप. मैंने कहा था ना, जिस भी वर्ड से आपको यह कार्य हो रहा है, जिस भी वर्ड से आपको यह पता चले कि कौन सा कार्य हो रहा है, प्लस ऐसा वर्ड जिससे आपको उसकी अवस्था का, कार्य की अवस्था का या सब्जेक्ट की अवस्था का पता चले कि कौन से टेंस से बिलोंग करता है. दैट इज ऑल्सो अ वर्ब. दैट मीन्स कि देयर इज अ टू वर्ब. इज एंड प्लेइंग बोथ आर वर्ब. ओके. Yes, sir. Yes, sir. इधर देख रहे हैं. अगर मैं आया घर पे तो पीटूंगा आपको. अभिनय पांडे, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं पूछूंगा, अभी बता नहीं पाया तो घर पे आके पीटूंगा आपको. मैं यहाँ से सब कुछ देख रहा हूँ, आप कहाँ पे देख रहे हैं? किसी, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये इधर उधर देख रहे हैं. द सेकंड सेंटेंस में देखिए, विराट इज अ क्रिकेटर. क्या इसमें कौन सा काम हो रहा है? कोई काम हो रहा है? कोई कार्य हो रहा है बेटा? No, sir. बताया जा रहा है ना, कोई काम तो नहीं रहा. ऐसा विराट इज अ क्रिकेटर ऐसा बोल सकते हैं. आदित्य इज अ स्टूडेंट. आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम अ टीचर. यानी यहाँ पे कोई कार्य तो नहीं हो रहा है. किसी की अवस्था के बारे में, किसी के बारे में बताया जा रहा है ना. Yes, sir. लेकिन विराट क्रिकेटर है या था या होगा, मतलब ये टेंस, जो समय, जो टेंस, किस मतलब किस स्टेट में आपका ये सेंटेंस है, किस सेंस की बातें कर रहा है? ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट अवस्था की बातें कर रहा है, वर्तमान अवस्था की बातें कर रहा है, या पास्ट जो बीत चुका उसके बारे में बात हो रहा है, या फ्यूचर में आने वाली बातें हो रहा है? कौन से स्टेट को शो कर रहा है? कौन सी अवस्था में? आपको कैसे पता चला? विराट से पता लगा? अब ये बताइए, विराट से पता चला या इज से, या क्रिकेटर, किससे पता चल रहा है ये? क्रिकेटर ठीक है, सभी शांत होइए. कई सारे बच्चे सुन करके बोलते हैं, सुन के वही बोलते हैं जो ध्यान से सुनते नहीं है मेरी बातें. जो बच्चे बोले, गलत बोले तो वो भी गलत ही बोल देंगे. किसी एक बच्चे ने बोला क्रिकेटर से थोड़ा पता चलता है प्रेजेंट टेंस से, पास्ट टेंस से, फ्यूचर. क्रिकेटर तो एक क्रिकेटर है. तो इसके बारे में बताया जा रहा है, उसके प्रोफेशन के बारे में. दिस इज अ वर्ड कि आपको विराट क्रिकेटर है, था नहीं है, मतलब इसकी टेंस का पता लग पा रहा है, इसकी स्टेट की अवस्था का पता चल जा पा रहा है. तो दैट मीन्स कि इज अ वर्ब, इज ऑल्सो अ वर्ब. यानी इस सेंटेंस में इज ही अकेला वर्ब है और कोई भी नहीं है.
लेकिन इन पहले वाले सेंटेंस में इज एंड प्लेइंग दो वर्ब हैं। यस सर। अब जहां पे एक वर्ब से ज्यादा वर्ब हो, तो पहली बात एक वर्ब से ज्यादा वर्ब हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। एक वर्ब नहीं, दो वर्ब नहीं, तीन तीन वर्ब हो सकते हैं। एक से ज्यादा, Yes, दो sir. से ज्यादा भी वर्ब हो सकते हैं। बट एज पर द यूसेज ऑफ वर्ब, प्रयोग के आधार पे वर्ब को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज, वन इज द मेन वर्ब एंड सेकंड इज द हेल्पिंग वर्ब। जो Sir, आपका helping दो verb. वर्ड्स आते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेला नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। यस सर। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एक दो आपके कहीं ना कहीं एक दो हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जहां जिसको लेकर के थोड़ा सा कह सकते हैं अपवाद है, एक्सेप्शंस है। बाकी अगर उन दोनों को छोड़ दिया जाए तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो बिना मेन वर्ब के नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, देखो आप ये कह सकते हैं कि आई एम अ बॉय। अब यहाँ पे तो आई एम आपका हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? आई एम अ बॉय, मैं बॉय हूं। ये मेरे बारे में बताया जा रहा है, मेरी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि मैं बॉय हूं या था। लेट से मैं बोलूं आई एम ए टीचर, तो क्या मैं टीचर हूं या मैं टीचर था या मैं टीचर रहूंगा? क्या मेरी अवस्था के बारे में जो स्टेट्स ऑफ सब्जेक्ट कौन सा वर्ड शो कर रहा है? एम ना, एम से तो आप पता लगा पा रहे हैं प्रेजेंट स्टेट की बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। यस सर। एम, आप सुनिए, जहां पे आपका सिंगल वर्ब हो, देखो मेन वर्ब तो निश्चित आएगा, मेन वर्ब निश्चित आएगा, लेकिन जहां पे एक से ज्यादा वर्ब है वहां पे दूसरा एक वर्ब जो मेन वर्ब है उसको छोड़ के जो बाकी है वो आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। चाहे वो तीन वर्ब हो तो तीन में से सिर्फ एक ही मेन वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब दो होंगे। इफ देयर इज अ टू वर्ब तो दैट मींस कि देयर इज ओनली वन मेन वर्ब एंड अनदर इज द हेल्पिंग वर्ब। ओके? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आप ये समझिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसको आप पहचानेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है कौन सा मेन वर्ब है? इसको कैसे पहचानेंगे? Yes, sir. मान लीजिए Yes, sir. अभी मैंने यहाँ पे एक पहला ही सेंटेंस लिखा था, विराट इज प्लेइंग क्रिकेट। आपको यहाँ पे बताया गया देयर इज टू वर्ब, आपका एक इज है और एक प्लेइंग है, यही तो बताया गया। Yes, sir. यस सर। ये मान लीजिए, अगर देखो अब यहाँ पे अगर दूसरे सेंटेंस में क्या है, विराट इज ए क्रिकेटर, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है। तो ये बताइए जो IS है इज, ये आपका मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? सर हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लिसन केयरफुली, दिस इज अ मेन वर्ब। अगर आपका एक ही वर्ब आ रहा है दैट इज अ मेन वर्ब, दैट इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। आपका सिर्फ एक वर्ब है तो वो आपका मेन वर्ब रहेगा। हेल्पिंग वर्ब तभी आएगा जब मेन वर्ब भी हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन जानते हैं क्या है? अ हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब। अ हेल्पिंग वर्ब Yes, हेल्प्स sir. द मेन वर्ब। तो जब मेन वर्ब होगा ही नहीं तो हेल्प की क्या जरूरत? तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही नहीं। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ यस पे सर। अगर हेल्पिंग वर्ब इज है तो मेन वर्ब क्या है? एक्चुअल में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब ही है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब हो तो दैट इज द मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एक से ज्यादा हो तभी वहां पे हेल्पिंग वर्ब होंगे। समझ में आया? सर सिर्फ एक ही वर्ब हो तो दैट इज अ मेन वर्ब, नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। एक से ज्यादा अगर तीन वर्ब हैं, अगर तीन वर्ब हैं तो उसमें से टोटल कितने हेल्पिंग वर्ब होंगे? अगर तीन वर्ब हैं तो कितने हेल्पिंग वर्ब होंगे? कौन बताएगा? बताइए।
लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया, किसी को नहीं पता। लेट्स, अच्छा ये बताइए, अगर जैसे यहाँ पे दो वर्ब हैं, विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, हाउ मेनी वर्ब इज देयर इन द फर्स्ट सेंटेंस? बेटा आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। शिखर क्या कर रहे हो, बैठे रहोगे ऐसे, क्या कर रहे हैं आप लोग? सभी लोग बोलिए, ममता सुंदर आप भी। देयर इज ए टू वर्ब, तो टू वर्ब में से एक वर्ब तो मेन वर्ब होगा ना, कितने हेल्पिंग वर्ब बचे? Yes, sir. में से एक मेन वर्ब है, तो एक वर्ब बचा, तो एक बचा वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बेटा यहाँ पे मैं बोल रहा था, यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक आपका मेन वर्ब है, प्लेइंग आपका मेन वर्ब है, तो इज क्या है? क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। Helping मान लीजिए यहाँ पे इस सेंटेंस में मान लीजिए सिर्फ दो वर्ब हैं, मैं कोई ऐसा सेंटेंस लिखता है जिसमें तीन वर्ब होते हैं, जिसमें तीन वर्ब होते हैं। आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है ना? Yes, sir. आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा। मान लीजिए मैं कोई ऐसा सेंटेंस लिख दूं प्रेजेंट परफेक्ट का, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 1 year। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख ही दे रहा हूं, टीचिंग में क्यों लिख दे रहा हूं, बाकी नहीं लिखता। आई हैव रिटन वन मोर सेंटेंस। यहाँ पे कौन से काम हो रहा है, पता चल रहा है कोई काम हो रहा है? नहीं, इज देयर एनी वर्क इज गोइंग ऑन? टीचिंग इज गोइंग ऑन। Teaching. हैव बीन इस कौन सी अवस्था में, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, किससे पता चल रहा है? टीचिंग से या आई से या हैव बीन से, किससे पता चल रहा है? Sir, teaching. टीचिंग से क्या पता चल रहा है? टीचिंग से यह पता चल रहा है कि टीचिंग का काम हो रहा है। तो चलो ये वर्ब हो गया। ये हैव बीन से क्या पता चल रहा है? हैव बीन से have been Helping. in the present perfect tense। इससे ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट अवस्था में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। समझ में आया? टीचिंग, अब इससे जब हमें अवस्था पता चले तो दैट इज ऑल्सो वर्ब, और जब इससे हमें काम का पता चले तो दैट इज ऑल्सो वर्ब। तो टीचिंग इज अ वर्ब। Yes, sir. टीचिंग भी वर्ब है, हैव भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है। यहाँ पे तीन वर्ब है। ये बताइए मेन वर्ब कौन सा है? टीचिंग मेन वर्ब है। कितने, अच्छा टीचिंग अगर मेन वर्ब है, और भी कोई मेन वर्ब है या सिर्फ टीचिंग ही है? बस Sir, say teaching. सिर्फ मेन वर्ब सिर्फ एक होता है, ध्यान से सुनिए सभी लोग, मेन वर्ब सिर्फ एक ही होते हैं। बाकी ये दो वर्ब जो बच्चे हैव और बीन, ये दो वर्ब कौन से वर्ब कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। दैट मींस अब सभी लोग शांत रहिएगा थोड़ा सा। जब 10 मिनट बचे हैं तो मैं आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह कंप्लीट कर दूं, नहीं अधूरा रह जाएगा। आपसे अगर बात करने में लगूंगा, आपसे ज्यादा बात करूंगा तो अधूरा रह जाएगा। तो लेट मी फिनिश इट। बेटा कहने का मतलब है टीचिंग इज द मेन वर्ब, और ये दो वर्ब अगर बचे तो आपका 1 2 ये दोनों आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो दैट मींस कि किसी भी वर्ड्स में, किसी भी सेंटेंस में आपका अगर एक से ज्यादा वर्ब है तो पहला तो आपका मेन वर्ब है, एक से ज्यादा जो भी है दैट ऑल विल बी द हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब सिर्फ एक होगा, और ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ एक ही वर्ड आपका मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब ना हो हेल्पिंग वर्ब हो। मेन वर्ब सिर्फ एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं। समझ में आया? One more thing, अब आप ये कैसे आया है मेन वर्ब, आपने यहाँ पे टीचिंग बता दिया, चलिए ठीक है।
मैं इसको भी समझा देता हूँ। यहाँ पे लेट्स से विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, मैं प्लेइंग को अगर यहाँ पे हटा दूं तो क्या हो जाएगा, विराट इज क्रिकेट। तो विराट इज क्रिकेट का मतलब तो ये नहीं पता चलेगा ना कि क्या काम हो रहा है। इवन ये कहीं ना कहीं सेंटेंस भी रॉन्ग है। No, sir. लेकिन अगर मैं यहाँ पे इज हटा दूं, सिर्फ इज हटा दूं, यानी प्लेइंग अगर मैं हटा दे रहा हूं तो मुझे पता नहीं चल रहा कि which work is going on, which work is going on, ये नहीं पता चल पा रहा है। और जो टेंस है ग्रामेटिकली वो भी एरर है, इसका मतलब वो भी नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन Yes, sir. अगर मैं इज हटा देता हूँ, लेट्स से इफ आई रिमूव द इज, तो क्या होगा, विराट प्लेइंग क्रिकेट, तो कम से कम इससे इतना तो पता चल जाएगा प्लेइंग से कि हाँ ये खेला जा रहा है, प्ले का काम हो रहा है, प्लेइंग हो रहा है। Yes, sir. तो पता चल जाएगा ना। Yes, sir. जो अवस्था है सेंटेंस की, जो ये नहीं पता चलेगा, तो दैट मीन्स कि प्लेइंग इज द मेन वर्ब। और एक चीज और समझिए, अगर आपका दो वर्ब हैं या दो से ज्यादा वर्ब हैं तो सबसे लास्ट में जो वर्ब आएगा दैट इज अ मेन वर्ब। इतना पहचान लीजिएगा। ओके। Yes, sir. अगर आपका एक से ज्यादा वर्ब है, एक से ज्यादा दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, या मान लो 4 5 6 8 10 कितने भी वर्ब हैं, अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जहां पे बहुत सारे वर्ब हैं, लास्ट वाला वर्ब, जो सबसे लास्ट वाला वर्ब होगा दैट विल बी द मेन वर्ब, बाकी आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे। समझ में आया? और ये हेल्पिंग वर्ब को, जैसे अभिनय का नाम तन्मय है, हेल्पिंग वर्ब का नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी है, लिंकिंग वर्ब भी है, इसके 3 नाम है। Yes, sir. हेल्पिंग वर्ब इज नोन एज अ लिंकिंग वर्ब और टू, और ऑक्सिलरी वर्ब इसका काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मेन वर्ब, मेन वर्ब की सहायता करना। समझ में आया? Yes, sir, जैसे इस सेंटेंस में लिखा है प्लास्टिक श्रेड्स आर वॉश टू रिमूव इम्प्यूरिटीज, तो आर आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आर आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन कई सारे सेंटेंस होते हैं, लेट्स से कि ये प्लास्टिक इज अ रिसाइकेबल वेस्ट, अब यहाँ पे आपका कोई काम नहीं हो रहा है, ये बता रहा है प्लास्टिक जो है वो रिसाइकेबल वेस्ट है, तो दैट मीन्स कि कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन अवस्था के बारे में कौन बता रहा है, इज, तो इज अकेले आ रहा है, तो इज जो है आपका ये लिंकिंग वर्ब है, बट इट इज अ हेल्पिंग वर्ब, मतलब इट इज अ मेन वर्ब। बेटा आपको लिंक कर रहा है एक तरीके से, आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपके बुक में जो दिया है दैट इज ओनली 23, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो 28 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। Yes, sir. 28 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, 15 हेल्पिंग वर्ब्स आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, और 13 हेल्पिंग वर्ब्स आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। Yes, ठीक है? sir. अब यहाँ पे बुक्स ने Yes, sir. दे दिया है, अब यहाँ पे मेन वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब है नहीं, लेकिन जो ये लिंकिंग वर्ब है इस दो सेंटेंस को, दो चीजों को जोड़ रहा है, दैट इज वर्किंग एज ए मेन वर्ब, इट्स नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे कुछ लिखा है आम, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स इंक्लूड है, हेल्पिंग वर्ब्स इन सभी को इंक्लूड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इज आपका हेल्पिंग वर्ब ही होगा। हेल्प में भी द हेल्प जो है हो सकता है लिंकिंग वर्ब हो सकता है आपका मेन वर्ब का काम करे। अगर मैं बोला कि ही इज अ बॉय, तो ही इज अ बॉय में क्या होगा, कोई काम तो हो नहीं रहा है, तो इज जो है वो आपका मेन वर्ब की तरह काम करेगा। ओके? Yes, sir. yes, sir, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप लोग समझ गए क्या है? Yes, sir. लिंकिंग वर्ब, बेटा एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, लिंकिंग हेल्पिंग वर्ब को लिंकिंग वर्ब नहीं कहते। लिंकिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब दैट ज्वाइंस द सब्जेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सब्जेक्ट को उसके बाकी के बचे हुए सेंटेंस को जोड़ता है, जो सब्जेक्ट को उसके बचे हुए सेंटेंस से जोड़ता है, दैट इज अ लिंकिंग वर्ब, वो जो लिंक करता हो, जोड़ता है। ओके? जैसे प्लास्टिक आपका Yes, क्या sir. है, प्लास्टिक इज ए सब्जेक्ट, और ये बाकी बचे रिसाइकेबल वेस्ट आपका ये बचा हुआ सेंटेंस, इसको किससे जोड़ा जा रहा है, इज, तो इज अ हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा यहाँ पे प्रॉपर्ली दूसरे तरीके से बताएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए
हेल्पिंग वर्ब आपका जहाँ पे मेन वर्ब ना हो, आपका जो हेल्पिंग वर्ब के वर्ड्स हैं ये अकेले आते हों, ऐसा मान के चलिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ये अकेले, जो हेल्पिंग वर्ब जो अकेले यानी मेन वर्ब का काम करे तो वो वर्ब उस समय लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। ओके, Yes, sir. दैट Yes, मींस sir. इज जो है इज किसी के हेल्प तो नहीं कर रहा है ना, बट इज अ हेल्पिंग वर्ब एक तरीके से आपने हेल्पिंग वर्ब के टेबल से उठाया है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो दैट इज अ लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब से कंफ्यूज ना हो, आप समझिए केवल हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आपको पहचानना है। Yes, sir. और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स के बारे में बताया जा चुका है। वन मोर थिंग जो आपको ध्यान रखना है, 3 मिनट बचे हैं तो वो जो 3 चीजें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। आपका एक से ज्यादा वर्ब अगर आएगा तभी आपका हेल्पिंग वर्ब्स अवेलेबल है, अगर अकेला कोई वर्ब है तो दैट इज ए मेन वर्ब। ठीक है, Yes, sir. आपका अगर कोई हेल्पिंग वर्ब जो है अकेला आ रहा है तो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। आपको जो सबसे पहला नोट याद रखना है, किसी भी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब अगर है तो अंतिम वाला ही मेन वर्ब होगा। जैसे यहाँ पे देखें पहले सेंटेंस में आई एम लीविंग फॉर द डे, यहाँ पे एक काम हो रहा है, लीविंग का काम हो रहा है, छोड़े जाने का काम हो रहा है। एंड देयर इज वन मोर वर्ड दैट इज एम, एम से द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, इस एम से हमें क्या पता चल रहा है, द टेंस ऑफ द सेंटेंस, दैट मीन्स कि एम इज ऑल्सो वर्ब, लिविंग इज ऑल्सो वर्ब। तो सबसे लास्ट में एम पहले आ रहा है, लिविंग बाद में आ रहा है, तो लिविंग इज द मेन वर्ब, एम इज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, Helping verb. Yes, sir. अब यहाँ पे देखते हैं दे आर Yes, sir. प्रैक्टिसिंग योगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करने का काम हो रहा है। आर यहाँ पे सेंटेंस टेंस बता रहा है, आर बिना मेन वर्ब के नहीं, मेन वर्ब के साथ में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये मेन वर्ब हुआ प्रैक्टिसिंग, जो बाद में आता है आर इज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, सर्कल द हेल्पिंग वर्ब। Yes, sir. हेल्पिंग वर्ब को सर्कल करना है और मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है। एक चीज और ध्यान देना, Yes, लिंकिंग sir. वर्ब, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब जो है वो बिना मेन वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का काम करे तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि रमा वाज अ टीचर, रमा वाज अ टीचर, क्या कोई काम यहाँ पे हो रहा है? No, sir. नहीं, तो क्या है, वाज इज अ लिंकिंग वर्ब। बेटा The your linking session is verb. about to be closed, you all need to complete the question number 1 and 3, 1 2 3 आप लोग कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा एक बार, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो मैं समझा भी दूंगा। आप सभी लोग को, आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पूरा कंप्लीट करना है और इसको भेजना है। जो नहीं समझ में आएगा अगले क्लास में आपको यही टॉपिक ग्रामर जंक्शन एक बार फिर से मैं समझाऊंगा या मैम समझाएंगी, sir. और आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। Yes, ma'am. संजना आप Yes, म्यूट sir. रखिए बेटा, आपके यहाँ से आवाज रिटर्न आ रही है। तो दिस इज